Muhammad Ghori's attacks on India. Right? That way, that may be इंट्रोडक्शन. ये एक आपका इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है जब हम क्वेश्चन लिखते हैं. आंसर इफ क्वेश्चन अराइज इन द फॉर्म ऑफ दैट डिस्क्राइब द कंसिक्वेंसेस ऑफ मोहम्मद गजनवीज इन्वेजन और डिस्क्राइब द इंपैक्ट्स ऑफ मोहम्मद गजनवीज इन्वेजन. तो हम शुरू करते हैं, हम सीधे कंसिक्वेंसेस नहीं बताते, हम कहते हैं कि मोहम्मद गौरी वाज द रूलर ऑफ गौर, ही इन्वेडेड अवर कंट्री, राइट, थ्रू द पाथ founded by Muhammad Ghaznavi. Right? He was able. Muhammad Ghori's objective was not only to plunder India but also to establish empire. Why? Because his home conditions were not very favorable for him. He came here. He conquered the part of India. He tried to annex the part of Multan, the part of Punjab in his empire, and divided his conquested empire into three parts, three segments. And the Indian segments came under the Sipah Salar, whom you are popularly known as founder of the Delhi Sultanate, Qutbuddin Aibak. Right? So that way, he laid down the foundation of coming empire of India. But definitely, before moving towards the study of Delhi Sultanate, we must analyze the impacts or consequences due to Ghori's invasion. And we can analyze those under the following headings. ठीक है, और मैंने आपको ज्यादा नहीं 5-6 हेडिंग बना के रखी हैं. पहली हेडिंग है चांसेस ऑफ यूनिटी इन इंडिया नाउ 0. ठीक है, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं. हेडिंग, द टाइटल, द सब टाइटल शुड बी लाइक दैट कि इट विल गिव यू इंप्रेशन दैट व्हाट यू विल हैव टू राइट डाउन अंडर दिस हेडिंग. अब आई हैव रिटन chances of unity 0. Second, foundation of Muslim state. Third, military weaknesses exposed. Fourth, spread of Islam. Fifth, cultural synthesis began. Sixth, communalism emerged. And seventh, destruction of art and architecture. ये simple 6 points मैंने आपको दिए हैं, and I will give you the way you get the heading, get the subheading, and explain on the basis of that heading. Like I gave you first one, chances of unity 0. ठीक है ना. अब ये for whom I am telling, after the consequence of Muhammad Ghori, he conquested. I am not talking about the Ghori or the Islamic follower of Islam. I am talking about the people who are living inside India. I am talking about Rajputs. I am talking about Indian society. Okay, now with the conquest of Muhammad Ghori, he started establishing his empire. He started appointing his subedars, his persons to the particular places like Subedar of Multan, Sipah Salar of Multan, Sipah Salar of Lahore, that way. Right? It means the sovereignty of Rajputs is going to end. So they will not get now chance to recollect themselves against foreign invader. ठीक है ना. आई गेव टाइटल कि अब जो है भारतीयों के बीच में जो एकता के चांसेस हैं तो वो 0 हो गए, शून्य हो गए. अब एकता की कोई गुंजाइश नहीं बची है. एंड यू कैन वेरी गुड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड through the study of history, yes, for next 100,000 years, 700, 800 years, it was very difficult for us to bring unity, the feature of unity, the feeling of unity. Still in present, very difficult. So I made this point that after the invasion of Muhammad Ghori, the chances of unity among the society of India 0. This is first heading. And that way you can explain, you can put examples. Right? The example, society.
So there are several evils in society. It was divided into several segments, right? But do you think that after conquest of Gauri, the situation changed? The situation goes on worst. If Indian society was previously divided into 10 segments, so after attack of Muhammad Gauri, there was no light of learning, there was no light of knowledge. So the people are continuously multiplying into segments, several sects. Okay? If the at the eve of Muhammad Gauri there was 10 sects, so now it becomes 20, and every in every centenary they are multiplying. So the chances of unity you will find nowhere available in India now. पहली हेडिंग मैंने बोली थी. The second heading I gave you, foundation of Muslim state. ठीक है ना. अब it becomes very clear that now the rulers and the ruling group will change. ठीक है ना. Later on you get the Delhi Sultanate. It was ruled by 5 dynasties: Slav dynasty, then Khalji dynasty, then Lodi dynasty, then Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty, and then Lodi dynasty. Any one of these rulers who are ruling from 1206 to 1526. I'm not talking about later. I'm talking about this phase. In this phase, do you get any ruler of Delhi is Hindu? So definitely, this scenario after the first consequence, second consequence of this attack is that now the ruling group will change. Rajput will be displayed by the Turks, right? And if they will establish their rule, then they will definitely make changes in administration, in military system according to their pattern. ठीक है ना. तो जो आपके शासन की परंपराएं, पद्धतियां इत्यादि थी वो अब खत्म हो रही हैं, और अब आपको जो है टर्किश जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, बॉडीज हैं, उनको लाइक यू गॉट इक्ता व्यवस्था और भी बहुत सारे हैं. द टैक्सेस, द न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस, जजिया, जकात, खुम्स, कुछ. Now you new kind of system you will have to adopt. This is second one. Third one, I gave you the heading spread of Islam. As you know, before 10th century, the Islam was there was no people, no inhabitant of India is follower of Islam. The Arabians are coming here. They are mediator of trade. They are follower of Islam, but they came here. They returned back. They are not the inhabitants of our country, right? But after the conquest of Muhammad Gauri, it becomes the part, Islam becomes the part of our country. They settle down here, right? And then you can say in your country now there is two religion, one is Hindu and another is Islam. As well as it is very evident that they are winner. So definitely they will try to convert forcefully the Hindus into the Islam. Or if you will give better example, in Hindu society there are a big group which was untouchable. They are living just outside the cities and towns. They are not permitted to enter inside the common place. मार्केट में भी अगर उनको आना होता था वो डंडा बजा के आते थे कि किसी पर उनकी छाया ना पड़ जाए. दिस वाज द सिचुएशन. तो इट वाज इजियर फॉर द न्यू कन्क्वेरर दैट दे विल गिव some facilities to those people कि हाँ तुमको हम शहर के अंदर सेटल कर देंगे, you convert, and they will be easily converted. ठीक है ना. There are huge chances of such consequences, and which also in some places it took places, right? So definitely the Islam will spread inside your country is the next consequence of. पहले जो है जो आ रहे थे वो they are not able to conquer India permanently. So Islam is coming, few people are adopting and they are returning back. But now it will become permanent religion of your country,
it will press your people to convert into the Islam because they are the rulers, right? है ना? तो आप उसमें एग्जाम्पल दे भी सकते हैं कि मुस्लिम है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि मुस्लिम राइट डाउन राणा, मुस्लिम्स हैविंग so many Muslims having write down Chaudhary, है ना? तो these people are, I was talking about in dissertation to some of my students from Jammu Kashmir. So he was telling that the original name of their village, his village is Indragram. They know. He was himself admitting that the name of his original village, he is original inhabitant of that village, and his village original name is Indragram. So he was accepting. So you can just imagine कि now forcefully the people will be converted into the Islam. ठीक है? Yeah, some people for their political benefit will take the shelter of Islam. This is the another consequence we will observe after conquest of Muhammad Ghori. Then we will move to the next one. Synthesis of new culture या cultural synthesis began. ठीक है ना? अभी तक क्या हो रहा था कि the people attacking our country is Hunas, people attacking our country is Kushans, people attacking our country is Pahlav, right? The people are attacking our country, but they people don't have their own culture. They are barbarous communities. ठीक है? They came here, they are able to conquest our part, but they don't have anything to impose on Indians. अगर वो भारतीयों को बोलते कि हमारा धर्म अडॉप्ट करो, तो what was their religion? Nobody knows. ठीक है ना? तो they came here, they adopted our religion, they became part of Hindu society. But अब आपके सामने जो आया है, that is a quite different situation. Your established religion is Hindu, and the another religion who is conquesting your country is having settled religion, that is Islam. अब दो स्ट्रीम आपके पास आ गई हैं, कल्चरल स्ट्रीम, and they have to live together. Either one have to finish another one, completely transformation into Islam or completely transformation into Hindu. या तो सॉल्यूशन ये है, either the solution is cultural synthesis. ठीक है ना? तो सिंथेसिस होगा, और जैसे भी होगा वो सिंथेसिस बिगिन होगा, और द रिजल्ट यू विल गेट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्ट, ये इन चीजों में, एंड द सेवरल थिंग्स द मुस्लिम विल अडॉप्ट फ्रॉम हिंदूज and the Hindus will adopt from Muslim. This kind of synthesis will also begin because they are living together and they are not going to adopt accept the dominance of each other. ठीक है ना? दोनों में से कोई भी धर्म के लोग एक दूसरे के आधिपत्य को मानने को तैयार नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा कि ठीक है मत मानो, तो चलो साथ रहते रहते कुछ ट्रांसफर होने लग गया. ठीक है ना? चाहे वो इमरजेंसी में हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, बट द कल्चरल सिंथेसिस विल बिगिन. दिस इज माय फिफ्थ हेडिंग. ठीक है ना? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आई राइट डाउन कल्चरल सिंथेसिस बिगिन. किसके बीच में? दो आई, दोनों का अपना अपना एस्टेब्लिश्ड है, तो दोनों की अपनी अपनी वो है कि हम तुम्हारी क्यों माने, तुम हमारी क्यों मानो, पर साथ रहना है, तो दिस सिंथेसिस विल बिगिन. वो आपको जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, भाषा इत्यादि में दिखाई देगा. ठीक है? यूजुअली जो है वो इस्लामिक फॉलोअर कहते हैं कि उर्दू इज देयर लैंग्वेज. नो, उर्दू इज लैंग्वेज डेवलप्ड इन अवर कंट्री, राइट? इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द कैंप लैंग्वेज ऑफ द सोल्जर्स. ठीक है ना? एक भाषा है जिसका जन्म भारत में हुआ है, और भारत में जो है उसको कहते हैं कि जब वो सैनिक जो है रहते थे, तो उसमें सारे सैनिक होते थे जो इस्लाम के हैं, भारत में भी भर्ती किए होंगे, तो सभी धर्मों के लोग रहते थे, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा को इजाद किया गया, उर्दू. और उर्दू का ही डेवलपमेंट है आपका रेख्ता, और रेख्ता का डेवलपमेंट है हिंदी. ठीक है? तो दिस इज नॉट द लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम इन दैट अरेबियन कंट्री. जहां से आप इस्लाम का जन्म मान रहे हैं, वहां से उर्दू का जन्म नहीं हुआ. उर्दू का जन्म यहाँ हुआ. ठीक है? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल सिंथेसिस. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कम्युनलिज्म एमर्ज्ड. ठीक है ना? आई एम strictly telling you that there are two religion, two culture standing before each other. ठीक है ना? ठीक है, आपने politically you are able to defeat the rulers, but you can't able to defeat the followers of the particular religion. Hindu religion is ancient religion. It has its established trend which was recognized by whole world.
तो the leaders of that religions are not going to accept Islam, and they are trying to preserve their religion before the rulers. And ruler is basically follower of Islam. So obediently he will try to suppress you or to press you to convert into the Islam. The press is press. The one is pressing, another is pressing not to change. एक चेंज करवाना चाहता है, एक चेंज नहीं करना चाहता है. In that process, what will happen? The trench between the two communities will start. दो संप्रदायों के बीच में अगर खाई पैदा होने लग गई है तो दैट ट्रेंच इज कॉल्ड कम्युनलिज्म. इसी को कहते हैं संप्रदायवाद. ये तेरा संप्रदाय है, ये मेरा संप्रदाय है. इफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग अराइज इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर सेक्ट्स, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, राइट? एंड we are trying to find out the solution of communalism in modern Indian history. हम जो है सांप्रदायवाद का जो है समाधान कहाँ ढूंढते हैं? आधुनिक भारत में ढूंढते हैं. ठीक है. अरे आधुनिक भारत में कहाँ ढूंढोगे आप जो है? ठीक है. जब if you are blaming Britishers to create differences between Hindu and Muslim, ठीक है ना? तो at that time you think about the example that you are two brothers and there is very much affection between you two. You both have very much faith on each other. Then there is no power who will make you separate. But if there is a pin kind hole inside between the faith of two brothers, so it is easier to separate them. Similarly, the case for the cultures, for the religions, if two religions already having some gap, so it becomes easier for the third party to make it larger. ठीक है ना? अंग्रेजों ने उस खाई को चौड़ा किया होगा, आई नो. उन्होंने कम्युनलिज्म को थोड़ा सा बड़ा किया होगा, बृहद रूप दिया होगा. बट कम्युनलिज्म इज emerged due to the Britishers. I'm not going to accept it. Right? Here in the beginning of the attack of Muhammad Ghaznavi, either it is Arabian, either it is Turks. So what they are doing? They are trying to forcefully converting the people of particular religion, established religion, to their newly framed religion. ठीक है ना? If you have a greater prospect, if you have better aspects of your religion, so might be possible people will definitely attract towards you. जैसे in ancient what happens? The people are fed up with Vedic religion, right? Then they saw another religion, Buddhist religion. They found that Buddhist religion is having broader prospect of religion, so they attracted towards Buddhism, right? They do means forceful conversion is not possible in the in the matters of religion or in the matter of belief. पर Arabians क्या कर रहे हैं? Turks क्या कर रहे हैं? They are trying to forcefully converting the people. They are giving slogan of jihad. They are giving कि जो है वो इन फील्ड्स को खत्म कर देना है, आइडोल वर्शिपिंग खत्म कर देनी है. ठीक है. तो if you have concept to finish, if you have concept already, you made a concept that with you will have to finish another system, so definitely another system will try to sustain. ठीक है ना? वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा अपने आप को सस्टेन करने का. एंड हेंस द रीजन इज कि द हिंदुइज्म survived, but on what condition? On the emergence of communalism. So the roots of the communalism lies in the entry of Islam in our country. If we want really this, so we need to find out or go through those root causes. ठीक है. And here I gave you one point. Okay, there are two cultures. It is very difficult to finish each other. Yeah, the solution of the problem in my words is ये दोनों में से या तो एक को खत्म कर दो. ठीक है.
ठीक है, तो ये तब पॉसिबल होता कि इनमें से कोई एक जो है कि जो रूल्स रेगुलेशन जो भी उसकी उसका स्ट्रक्चर है वो वीक होता, कल्चरली वीक होता, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली वीक होता, बट बोथ आर स्टैब्लिश्ड आई थिंक, एंड इट इज डिफिकल्ट टू फिनिश अप वन ऑफ देम। किसी एक को खत्म करना संभव नहीं है, तो दैट इज नॉट सॉल्यूशन, एंड इफ वी वर्क ऑन दैट सॉल्यूशन, इफ एनीबडी thought that they will work on the basis of this theory ki one of them will be finished and they will be able to establish their own identity, survival of their own religion, so that is not possible. I am telling you, means that is my view. But the another way of solving the problem is the mingling of the culture, which I gave you heading like the cultural synthesis, right? So I gave you one statement of Vivekanand. Vivekanand believed that the all the religion of the world, if you will try to find out, will get their origin in Vedanta. Means वो वेदांता के स्टिंच फॉलोवर है, but he never said that spread Hinduism, Vedic, Sanatan Dharma to the world. What he told that our culture, our ancient culture, our ancient religion is the best one of the world, but for world what is required? The good coordination between all the beliefs, between all the religions. वो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। मनुष्य है, एक ही चीज के पीछे नहीं चलेगा, तो अगर हमको जो है अलग अलग तो सेक्टर रहेंगे, अलग अलग लोग हैं, तो एक जैसे सारे हो नहीं सकते। तो अगर आपको जो है शांति स्थापित करनी है, तो यू शुड गो फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिलीजन। हमको कोऑर्डिनेशन करना है, एंड दैट इज द सॉल्यूशन इन माय वर्ड, ठीक है ना। या तो दो मतलब अगर रूट्स पे जाएंगे तो सॉल्यूशन दो ही तरीके से होता है, या तो एक खत्म हो जाए या फिर दोनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाए, ठीक है ना। ऑन कॉमन पॉइंट दे शुड एग्री, राइट। माने जैसे अगर हमको इंडिया में सॉल्यूशन चाहिए, तो आई थिंक इट इज बेटर टू गेट द सॉल्यूशन दैट वी शुड गो ऑल, either it is Hindus, either it is Muslim, either it is any community living in India. If we want peace and order, if we want better development of our country, so we should demand to the government for uniform civil. ठीक है ना। जब हम भारत में रह रहे हैं, we are the citizens of India, we are living inside India, India is our country, so we should demand for same rules and regulation for all the people of India without indulging the religion in it, ठीक है ना। धर्म को एक किनारे छोड़ के सारे धर्म के धर्मावलंबियों को ये मांग करनी चाहिए कि भारत में जो है समान नागरिक संहिता बने, जिसमें सभी लोगों को समान नियमों का पालन करने की बात हो, और उसी का लोग पालन करें। धर्म या अन्य आधारों पर जो है देश के कानूनों का पालन करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर इफ वी गो फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो डेफिनेटली वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। ये जो आपकी चल रही है ना बहुत सारी डिमांड्स, अपने देश के अंदर बहुत सारी चीजें बना देते हैं। वो मराठवाड़ा की बात कर रहा है, वो काठियावाड़ की बात कर रहा है, वो जो है खालिस्तान की बात करते हैं, वो अलग अलग बातें करते हैं। तो ये बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी when the people have to follow single rule, so they will not able to make such kind of institution which are spreading the misconceptions among the people, ठीक है ना। सामान्य जो आदमी होता है, ठीक है ना, 90% जिसको मैं बोल रहा हूँ 80 to 90% जो कॉमन पीपल है, he is working for his रोजी रोटी। he don't have anything, he don't think about those things कि राजनीति में क्या हो रहा है और उसका क्या होना, they don't think about that one, ठीक है ना। whatever their religious priests, whatever their leader, political leaders tell them, they work accordingly, they didn't thought too much about that one. So hence I am telling you that if we want truly the solution of communalism, तो we go for uniform civil code, ठीक है ना। इस पे
आप लोग भी जो है अपना वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनली जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको तो आप कह ही नहीं सकते। एक हेडिंग ये भी हो सकती है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड इन एंशिएंट इंडिया, they are demolished by the invaders, right? And in place of those, or to reconstruct those broken pieces of specimens of art and architecture, we are not able to establish again, ठीक है। जिनको नहीं तोड़ पाए उन्हीं को आप आज बता पाएंगे, रेस्ट जो है बहुत सारे पीसेस ऐसे हैं जो खत्म हो, ठीक है। तो ये एक जो है जो कल्चर का हमारा वो था उसका एक हिस्सा हमारा टूट के चला गया। बहरहाल वो जो भी हो, that is another thing, but I gave you a picture of impacts or consequences of the attacks of Muhammad Ghori. In very short, I gave you certain points and I told you how to elaborate those points, ठीक है ना। And those points are elaborated on the basis of two: one, the explanation of the word, the title you have written, and on the basis of examples you can keep inside that heading. इज इट क्लियर? तो ये मेरी तरफ से था आपके लिए, ठीक है। अब कंक्लूड करने के बाद मैं आपके सामने कुछ सूचना भी देता हूं कि जो सिलेबस है हमारा वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। इसमें से अगर कोई हेडिंग आई डिडंट वेंट थ्रू और आई लेफ्ट, ठीक है ना, तो यू जस्ट सेंड मी। फ्राइडे एंड सैटरडे आर 2 days आई डोंट टेक क्लास, so in these 2 days through SMS in your group you tell me on which topic you want, right? If you want to know about Gupta administration तो send me कि sir elaborate Gupta administration, ठीक है ना। तो वो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी on the basis of that I will take the classes from Monday onwards, ठीक है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday अब जो क्वेरीज आपके पास आएंगी वो है मेरी तरफ से, मैंने जो हेडिंग्स है आपकी ऑलमोस्ट राइट 80 से 90% के बीच में आई कवर्ड दी सिलेबस, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू जस्ट सेंड मी दी हेडिंग्स, तो मैं रोज एक एक दो हेडिंग करके आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टॉक। आप अपने क्वेश्चंस रेंडमली भी रख सकते हैं कि सर इसको मेरे को बता दो, अगर मेरे दिमाग में वो चल रहा होगा तो मैं रेंडमली आपको उसका आंसर दूंगा, नहीं चल रहा होगा तो नेक्स्ट डे आई विल गिव यू आंसर, राइट? देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक। तो नाउ I'm ending. Okay, Nisha, thank you. If you have any question, any query, तो now you can ask. किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले। वैष्णवी नो, ओके ठीक है। तो बाइंड करूं, फिर बंद करूं मीटिंग को? हाँ मेरी, हाँ मॉर्निंग बेटा, हाँ बोलो बेटा। हम्म 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 हम्म। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, म्यूट करो। हाँ हाँ ठीक, मैं समझ गया। सुनो, आवाज आ रही ना? ओके। इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर आप लोग ध्यान दें इस पे, तो इसने कहा कि गुप्त काल में डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत सारी फ्यूडरेटरीज थी, बट उसके बावजूद भी जो है आपका जो भारतीय शासन था वो सस्टेन नहीं कर पाया, खत्म हो गया, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर आप बात कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण, वो पंचायती राज व्यवस्था डिसेंट्रलाइजेशन का ही वो है। तो ये इसके दिमाग में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि अगर जो है तब हमारे पास फ्यूडरेटरीज थी और इतनी सारी थी प्रिंसिपलिटीज थी, तो तब तो हमारा जो रूल था वो डिसेंट्रलाइज था, तो बहुत अच्छा चलना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि मोहम्मद गौरी का जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें उन्होंने जो है एक पूरे बड़े क्षेत्र के लिए सिपह सलार नियुक्त किया, उस सिपह सलार को वो हर तीसरे चौथे वर्ष ट्रांसफर कर देते थे। बाद में जो है जो सल्तनत की स्थापना हुई वहां पे एकता व्यवस्था आई, तो उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किया और वो सक्सेसफुल रहे। जबकि टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे प्राचीन भारत में फ्यूडरेटरी थी,
लेकिन वो सफल नहीं हुई। ये इसका साक्षी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटे यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन प्रेजेंट, ठीक है ना। बट द डिसेंट्रलाइजेशन काइंड जो आपका प्राचीन भारत में है, उसमें क्या है कि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो अपनी तलवार के बल पे फ्यूडल लॉर्ड का पद हासिल करते हैं। दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द रूलर्स, ठीक है ना। जब राजा उनको अपॉइंट नहीं करता है, यानी कि कोई जो है लोकल लेवल पे देहरादून का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी सेना तैयार की और इधर जो है धामावाला पे कब्जा किया, उधर कब्जा किया, उधर कब्जा किया, तो दिल्ली के राजा ने कहा कि ये फलाना आदमी जो है जिसने ये कब्जा किया ये मेरा फ्यूडल लॉर्ड है, उसको अधिकार दे दिए। ही वॉज नॉट अपॉइंटेड, ही वॉज एक्सेप्टेड एज ए फ्यूडल लॉर्ड बाय द रूलर। तो जो गुप्त काल में था वो इस तरीके था, ठीक। दूसरी चीज क्या थी, गुप्त काल में फ्यूडेटरीज की जो संख्या बढ़ी, वो कैसे बढ़ी, जैसे मैं गुप्त काल का राजा हूं और मेरे दरबार में जो है आप आए या और कोई आया और आपने जो है मेरी प्रशंसा में एक सुंदर जो है कविता सुना दी, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अरे वाह क्या कविता जो है साक्षी ने सुनाई है, और मैंने खुश होकर कहा कि इसको जो है सहारनपुर का जो है वो दे दो, गांव दे दो, ये सहारनपुर की जो है फ्यूडलिटरीज दे दो। तो आप तो गायक है ना, यू आर नॉट एबल टू एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपरली। तो ऐसे जो है जो ब्रह्मदेव गांव थे, जो पढ़ने पढ़ाने शिक्षकों को विद्वानों को दिए जाते थे, तो वो लोगों को वो फ्यूडल लॉर्ड्स तो बन गए, लेकिन वो दे आर नॉट एक्चुअली द फ्यूडल लॉर्ड्स। जो जो एबिलिटी जो है शासन चलाने के लिए चाहिए वो उनके अंदर नहीं होती थी, ठीक है। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस हमारे उसमें है कि जो फ्यूडल, हमारे वहां फ्यूडल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूनिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, दे वर नॉट पोस्टुलेटेड बाय द रूलर। वहां राज्य के अंदर ये यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हूं, इसके अंदर क्या करना है ये राजा नहीं निर्धारित करता, ये मैं करूंगा। आपके फ्यूडलिटरीज के अंदर जो होना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू एंड द थर्ड वन विल डिसाइड इटसेल्फ, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है कि हम जो है ऑफिशियल थोड़े हैं उसके। भाई मैं राजा का ऑफिशियल होता तो मैं बगल वाले का भी मैं बोलता कि यार वो मेरे समकक्ष अधिकारी है ना, तो मेरे और उसके बीच में अच्छी ट्यूनिंग होती। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं उससे पूछता हाँ भाई कैसे, अरे यहाँ तो अपनी अपनी मर्जी। वो कहता अच्छा तेरे को बड़ा वाला मिल गया, कोई बात नहीं तेरा जल्दी ही छोटा कर दूंगा। तो दैट काइंड ऑफ ट्रेचरस नेचर, ये जो आपके फ्यूडल लॉर्ड्स है ना, दे आर नॉट हैविंग द हेरिडिटरी इन सिस्टम। तो इसके कारण क्या है, उनके बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता रहती है कि तू बड़ा और मैं बड़ा, ठीक है। इसके कारण जब कभी युद्ध होगा, जब कभी कोई इमरजेंसी आएगी तो उसकी सेना जो है कहेगी अच्छा तेरी बड़ी सेना है तो देखो कैसे को पता चले अपने ही सैनिकों को टांग खींच रही। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज इन एंशिएंट इंडिया ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। तो उस जमाने में आप जब जो है डेमोक्रेटिक पैटर्न नहीं है, लोगों की कोई भागीदारी नहीं है, तो उस जमाने में इस तरीके के रूल्स बनाना पॉसिबल भी नहीं था। इसीलिए आपने देखा होगा कि एंशिएंट इंडिया में वी टॉक अबाउट रिपब्लिक्स, वी टॉक अबाउट मोनार्कियल काइंड ऑफ गवर्नमेंट रूल स्टेट्स, and later on I told you that democracy or republican kind of the states demolished and supremacy of monarchy established। तो वो जो जमाना है ना, तलवार का जमाना है, उस जमाने में लोगों को इस तरीके की चीजें समझ में नहीं आती कि विकेंद्रीकृत शासन है और जो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज वेरी लेस। शासन में मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो है 80% लोग कहते हैं, 90% लोग कि देश की रक्षा करने का काम क्षत्रियों का है, हम नहीं उठाएंगे, हम तो यहाँ से बैठ के देखेंगे, हार गए तो उसकी बात मान लो, तुम जीत गए तो तुम्हारी बात मान लो। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन पीपल, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट। तो जब लेस पार्टिसिपेशन होगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, दे आर नॉट ऑफिशियल्स एंड हेंस देयर विल बी प्रॉब्लम। इज इट क्लियर साक्षी? हाँ बोल। हाँ, 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 हाँ। बेटा आज की डेट पे तो मैं आपको कह रहा हूं ना, पीपुल्स पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी क्या कहता है,
डेमोक्रेसी कहता है कि until and unless each stakeholder participate in the process, ठीक है ना, until and unless they are not going to participate, the system will not be able to give 100% result, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब तक 100% सभी लोग, अब आप हम लोगों में से आप बताओ ना, क्या जो जो कॉमन मैन है या जो मजदूर जो है आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेसी में कहीं रोल प्ले करते हैं? या आपने कहीं देखा है कि अब कई बार आप देखते हो कि ये आपका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड का नेता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द इतने सारे लोग कलेक्ट होते हैं, आपको पता भी होता है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अपोज, क्योंकि जिनको अपोज करना है वो तो उसको कंधे में बिठा के घूम रही। दे डू नॉट नो कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन अवर एडमिनिस्ट्रेशन इफ ही विल बिकेम दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे वहां जो है ये सबसे बड़ी समस्या है ना, हम चुन के किसको भेज रहे हैं? जो सही आदमी, जो खर्चा नहीं कर सकता है, जो द पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जज्बा है लोगों के लिए भला करने का, अपनी जेब भरने का नहीं, उस आदमी को तो हम जीतने ही नहीं देते ना। तो हमारा पार्टिसिपेशन कहाँ है? गांव में प्रधान कौन बनेगा? मैं आपको अभी बताऊं, अभी कुछ पिछले से पिछले साल, मुझे ध्यान नहीं है, मेरे कई जानने वाले जो है प्रधान बने हैं, जिनमें एक आध मेरे मित्र भी हैं। तो एक प्रधान के लिए जो है लोगों ने जो है 50 लाख और 1 करोड़ तक खर्च कर दिया। भाई कमाएगा कहां से वो? ठीक है ना। अगर एक प्रधान बनने के लिए 50 लाख और 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आप बताइए ना, जो है वो विकास की बात करेगा या विनाश की बात करेगा? वो तो सारा पैसा हजम कर जाएगा, तो डेवलपमेंट कहां दिखाई देगा आपको? ठीक है, दिस इज बिग प्रॉब्लम कि हमारी जो है 80% जनता जो है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी करती ही नहीं है। चुनाव के टाइम पे वोट देके केवल अपनी जिम्मेदारी को निपटा देती है, और वोट भी कैसे देती है वो आपको पता है। तो जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा और जो आदमी वास्तव में सक्षम है, योग्य है, वो नहीं आगे आएगा। आप अंदाजा लगाए ना, आपके संसद में कई लोग, शायद बीच में एक टीवी चैनल एक चला रहा था ना, वो जैसे वो बनाते हैं जगह जगह पूछ के कि मंत्री जी को रोक लिया ये, तो यूपी में किसी मंत्री को रोक लिया था। मंत्री तो नहीं था, मेरे ख्याल से विधायक था, और तीसरी या चौथी बार उन्हें कई लोगों से मिला है, मुझे इसलिए ध्यान है कि वो जो है कई लोग नहीं बता पाए, पर उससे पूछा कि आप इतने सालों से एमएलए है, ये एमएलए होता क्या है? तो लिटरली 5 मिनट तक वो वहां पे खड़ा रहा, उसने एमएलए के कई मतलब बता दिए, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि एमएलए का वास्तविक अर्थ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। अगर जो आदमी एमएलए है और एमएलए की फुल फॉर्म नहीं जानता है, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि वो किस तरीके का विकास और कैसे विकास की बात करें। ठीक है ना, दिस इज बिग प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी तभी होती है जब पूरी तरह से साक्षरता होती है और पूरी तरह से पीपुल्स पार्टिसिपेशन होता है, तो आप रिजल्ट देखेंगे बहुत बेहतर आएंगे। लेकिन अभी इन चीजों में हम कई पीछे हैं। और लिटरेसी भी, अगर आप कहते हैं कि आपकी लिटरेसी 70% चली गई, तो वो मेरे हिसाब से अभी भी जो लिटरेसी हमारी वो 14-15%, 20% से नीचे नीचे है। लिटरेसी का मतलब होता है अ पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम, एंड ही इज बी एबल टू एनालाइज दिस policy is good for my country and not good for my country. On the basis of that, he opposes and he supports. ठीक है ना। लेकिन हमारे वहां तो a person who is able to write down कि मेरा नाम है राम, लिख दिया तो he became literate। नाम लिखना आ गया, लिटरेट हो गया। तो that doesn't works in democracy। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं अभी हमारे उसमें, जो धीरे 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 हो रहे हैं। अब इस समय आपने देखा होगा ना कि बाकी टाइम तो समझ में नहीं आता, लेकिन अब आजकल कोरोना की इमरजेंसी में आपको समझ में आएगा ना कि आप पुलिस वालों को लोग गालियां देते थे, वही बेचारे जो है दिन रात जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रात दिन लगे हैं वो जो है। ठीक, जिनको जो डॉक्टर्स की जी जो है सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, वो बेचारे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस मशीनरी आपके घर नहीं जा पा रही है। कई कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जो दिन रात 24 घंटे लगे हुए, उन्होंने अपने घर के बगल में अलग कमरा अपने लिए रखा हुआ है, अलग से खा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मीट। तो आप ये भी तो देखिए ना कि धीरे धीरे जो है जब इमरजेंसी आती है तो समझ में आता है कि हमारे जब एक वैसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में लोग नहीं सोचते हैं ना। अब आज की डेट पे देखिए ना कि व्हाट इज कैपेबिलिटी ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन, आज देखिए ना। अदरवाइज जो है
क्या डिफिकल्ट है जो है इतने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना? एक सरकार जो है कहाँ कहाँ से जो है आपके जो है लोगों को बुला रही है। अब सभी लोगों को बुलाना उसमें टाइम तो लगेगा ही, लेकिन कल वो जो है जैसे कच्छ में हुआ है, तो कच्छ में वो मजदूर जो है वहां लड़ने बना, अब मान लो जो है पुलिस गोली चला के मार देती तो क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि जो है उनके वहां मुख्यमंत्री ने तो मना कर दिया, जब तक वहां से गाड़ियां परमिशन नहीं आएगी तब से यहाँ से भेज ही नहीं सकते, तो ये कौन समझाए? ठीक है ना? दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ इलिटरेसी। आपको नाम लिखना आता है, आप साइन कर लेते हैं, लेकिन आपको समझ में भी तो आए यार, जो है जो आपके जो है आपकी इतनी मशीनरी, पुलिस मशीनरी आपको खाना पहुंचा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, तो अगर वो आपको टोक रही है तो आपको समझ में तो आए कि आप गलत कर रहे हैं। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक ये समस्याएं कुछ रहेंगी, लेकिन इस कोरोना के कारण जो है कुछ चीजें तो लोगों की समझ में आई हैं, वो कितना लंबा सस्टेन करेंगे ये अलग चीज है। ठीक है साक्षी?